Preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise previous questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. Related to the measures of central tendency and dispersion, skewness and kurtosis. Skewness and kurtosis over there. You need not to note down the questions over there. The PDF will be available. तो यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद आपको एक फॉर्मेट में मैं बता दे रहा हूं, अगर आप YouTube पर गो थ्रू कर रहे हैं तो यहां पर आपको CAIB PDF लिख करके व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर. तो यहां पर अगर आपको इस क्लास का PDF भी चाहिए तो आप CAIB PDF लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर के ऊपर, एंड आपके पास ये PDF जो है वो पहुंच जाएगी. राइट तो आपको CAIB PDF लिख करके व्हाट्सएप कर देना है टू दैट नंबर, एंड आपके पास वो PDF पहुंच जाएगी. सो डू नॉट नोट इट डाउन. 10 to 20 रेंज है एंड 20 to 30 रेंज है. तो ये कौन सी टाइप है? सबसे पहले दिस इज इंक्लूसिव टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप. काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा कि ये इंक्लूसिव टाइप है या फिर एक्सक्लूसिव टाइप है. दिस इज व्हाट टाइप? इंक्लूसिव टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप. दिस इज द एक्सक्लूसिव टाइप. ये कौन सी टाइप है? दिस इज द एक्सक्लूसिव टाइप ओवर देयर. एंड एक्सक्लूसिव टाइप के केस में देखिए आपके पास जो लोअर क्लास लिमिट होती है वो तो शामिल होती है, लेकिन अपर क्लास लिमिट शामिल नहीं होती. अपर क्लास लिमिट जो होती है वो अगले में शामिल होती है. ठीक है, तो यहां पर 20 जो है वो इस वाले में शामिल होगी. 20 जो है वो यहां पर शामिल होगी. ठीक है, तो यहां पर शिरीषा जी ने बिल्कुल सही आंसर किया कि एक्सक्लूसिव टाइप है एंड उसमें नेक्स्ट में काउंट होगी. ठीक है, तो यहां पर मैं 20 की बात करता हूं तो 20 किसमें शामिल होगा? 20 विल बी कवर्ड ओवर हियर इन दिस रेंज. 20 विल बी कवर्ड ओवर हियर इन दिस रेंज ओवर. ठीक है, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे. सो दैट विल बी रिलेटेड. राइट, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस के बारे में. देखिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी ओवर देयर? अब मेरे पास एक पॉपुलेशन है, लेट्स से देखिए 2000 स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दी थी. एंड फर्दर यहां पर मैंने सभी की हाइट निकाल ली. ठीक है, एंड मैं यहां पर एवरेज हाइट निकाल लेता हूं. किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है. एक एवरेज हाइट मैंने कैलकुलेट करी विच केम आउट टू बी 152 सेंटीमीटर. एक एवरेज हाइट यहां पर 152 सेंटीमीटर आ गई है. राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेंट्रल टेंडेंसी. दिस इज अ सेंट्रल टेंडेंसी. ऐसा नहीं है कि सभी वैल्यूज यहां पर 152 सेंटीमीटर के इक्वल है, लेकिन नियर टू 152 सेंटीमीटर हम यहां पर डिफरेंस जो है उसके हिसाब से यहां पर एलोकेट कर सकते हैं. दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट. तो जब भी हम कोई सैंपल पिक करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं. हमारा मेन मोटिव यही है. एंड सेंट्रल टेंडेंसी इसी की चीज के बारे में बताती है कि पर्टिकुलरली वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन किस चीज के आसपास घूम रही है. ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट. अब यहां पर हमने डाटा को क्या करना होता है? कंडेंस करना होता है सिंगल पैरामीटर के ऊपर. ओके, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? जैसे मैंने मीन निकाला, आईसेट की मीन जो आ रहा है यहां पर वो 152 सेंटीमीटर है. मीन की डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास x1 x2 x3 एंड xn, अब 2xn यहां पर टर्म्स है, उन सभी को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया. सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? ये मेरे पास क्या बन जाएगा? दिस वुड बी रिलेटेड टू व्हाट? ये मेरे पास क्या चीज बन जाएगी? दिस विल बी द मीन. ये मेरे पास मीन वैल्यू यहां पर आ जाएगी. राइट, तो यहां पर इसको मीन कह रहे हैं. ठीक है, तो मेरा मेन फंडा क्या है कि मैं कंडेंस करना चाहता हूं डाटा को, यानी कि डाटा को कम करना चाहता हूं. एंड फर्दर ताकि मैं डाटा को कंपेयर कर पाऊं, यानी कि कितना डिफरेंस है, यानी कि एक दूसरे के कितना डिफरेंस है.
लेट्स टेक द केस की एक स्टूडेंट की हाइट 166 सेंटीमीटर थी, तो आई कैन से ना कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर, इनको कंपेयर कर सकता हूँ कि मीन से कितना डिफरेंट है, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो टेंडेंसी का इस्तेमाल क्या होता है कि मैं मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि सेंट्रल टेंडेंसी देख लूं कि पूरे के पूरे डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एंड फर्दर एवरेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड फर्दर हम कंपेयर कर सकते हैं डाटा को। मेन फंडा यही रहता है। ओके, तो क्या क्या रिक्विजिट्स है? पहली चीज, जो भी मैं सेंट्रल पैरामीटर को पिक कर रहा हूं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को पिक करने के लिए जो भी पैरामीटर को उठा रहा हूं, हो सकता है कि मैं यहां पर मीन की बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके केस में पर्टिकुलरली मुझे यहां पर डिफाइन करना चाहिए रिजिडिटी, मुझे यहां पर पैरामीटर को या फिर स्टैटिस्टिक को रिजिडली डिफाइन करना पड़ेगा। एंड जो कोई भी यहां पर ये पैरामीटर या स्टैटिस्टिक हो, उसके केस में यहां पर उसे कैलकुलेट करना इजी हो। एंड ये जो भी पैरामीटर हो या जो भी स्टैटिस्टिक हो, वो सभी की सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो। ऐसा ना हो सिर्फ एक्सट्रीम यहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो, वो पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो। यानी कि अगर मैं 2000 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं एंड उनका पर्टिकुलर कोई सेंट्रल टेंडेंसी देखना चाहता हूं, तो वहां पर 2000 स्टूडेंट्स को कवर कर रहा हूं। एंड इसी तरह से अगर मैंने 200 स्टूडेंट्स को पिक किया एज अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ओवर देयर, तो यहां पर जो भी सेंट्रल टेंडेंसी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सैंपल की, वो 200 स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड हो उसमें से भी, ठीक है, ये चीज ना हो। एंड फर्दर जो भी मेरे पास चीज यहां पर कैलकुलेट हो, उसके ऊपर पर्टिकुलर मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे पाऊं। ऐसा ना हो कि बायस्ड हो, ऐसा ना हो कि वो बायस्ड हो। एंड फर्दर फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट ना पड़े, एंड एक्सट्रीम वैल्यूज का इंपैक्ट ना पड़े। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है कि ये ना हो कि कुछ एक वैल्यूज आगे बढ़ गई हैं एंड उसके बेस पर उसका वैल्यू चेंज हो, ऐसा ना हो, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी सैंपल के बेस के ऊपर या पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बेस पर उसकी वैल्यू चेंज हो, तो वो ठीक समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ एक वैल्यू की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो चीज ना हो, हम उसको इजिली इंटरप्रेट कर पाए। तो ये मेरे पास सेंट्रल टेंडेंसी, जो मेरे पास सेंट्रल पैरामीटर मैं पिक करने वाला हूं, सेंट्रल टेंडेंसी मिड वैल्यू मिड पॉइंट निकालने वाला हूं, उसके रिलेटेड ये रिक्विजिट्स होने चाहिए, यानी कि ये चीज उसमें शामिल होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज द केस रिलेटेड टू इट। अब यहां पर मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन या फिर एवरेज सबसे ज्यादा कॉमन है आपके पास सिंगल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ओवर देयर, जिसके बारे में हमने अभी के अभी बात करी। ओके, तो जहां पर हमने बात करी रिलेटेड कि आपके पास डिफरेंट जो डाटा है वो यहां पर हो सकता है, उसके बारे में हमने यहां पर बात करी है, राइट। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास यहां पर जो मीन है वो तीन तरह का होता है। एक होता है मेरे पास अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, एंड तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। अब यहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपने अटेंशन पे करनी है, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर्स है। दोनों के दोनों चैप्टर्स जो मैंने अभी कर रहा हूं, ये दोनों ही नए चैप्टर्स हैं। सैम्पलिंग का चैप्टर ऑलरेडी कवर था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं। आप उसको वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें काफी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, लेकिन वो सेंट्रल थ्योरम से रिलेटेड है, एंड फर्दर उसमें रेंज से रिलेटेड है, जेड वैल्यू से रिलेटेड है। यहां पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट थिंग्स के बारे में, यानी कि टोटली डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, एंड इसको अच्छे से गो थ्रू करना है आपने। ओके, तो अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। जब मैं अरिथमेटिक मीन की बात करता हूं, लेट्स टेक द केस मेरे पास डिफरेंट टर्म्स है 1 2 3 4 5। ओके, इनका अगर मैंने मीन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो यहां पर क्या हो गया? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 15 डिवाइडेड बाय 3 5, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पर मेरे पास मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? 3 के इक्वल आ गई। दैट इज द अरिथमेटिक मीन ओवर देयर। अब डाटा जो होता है वो मेरे पास दो तरह का डाटा हो सकता है। एक तो मेरे पास रेगुलर डाटा हो सकता है, एंड दूसरा जो डाटा हो सकता है मेरे पास, वो क्या हो सकता है? डाटा कुड बी रिलेटेड टू, मेरे पास वो डाटा जो होगा दैट वुड रिलेटेड टू कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उस डाटा से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर जो डाटा होता है वो अलग अलग फॉर्म में मेरे पास यहां पर हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में जो डाटा है वो यहां पर हो सकता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट से यहां पर देख करके बताइएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में अरिथमेटिक मीन क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ना अभी आपको, क्वेश्चंस के केस में अभी आपको ना यहां पर ऑप्शंस नहीं आने वाली हैं। तो आपको यहां पर जो आंसर पोस्ट करने हैं वो आपको उसी के हिसाब से पोस्ट करने हैं कि आपको यहां पर ऑप्शंस तो नहीं आएंगी, लेकिन आप किस तरह से आंसर पोस्ट करेंगे उसको देखकर ही आपने पोस्ट करना है वैल्यू को, राइट। तो यहां पर एक चीज को समझ के चलिएगा कि जब भी मेरे पास डाटा जो होता है वो यहां पर कंडेंस्ड फॉर्म में डाटा है, कंडेंस्ड फॉर्म में डाटा है। नॉर्मल मैंने यहां पर इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब भी मुझे यहां पर कैलकुलेशन जो है वो पर्टिकुलरली करनी है यहां पर कंडेंस्ड डाटा से, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। दिस इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपको दे रखी है, एंड उसका अपने मीन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 5 5, 2 × 10 20, 3 × 8 24, 5 × 4 20, 5 × 3 15, 6 × 2 12, 7 × 8 56, 8 × 6 48,
एंड 9 इंटू 3 27। तो ये वैल्यूज मेरे पास यहां पर आ गई है, ये सभी वैल्यूज मेरे पास यहां पर आ गई है। एंड फर्दर अब मैंने इनका मीन कैलकुलेट करना है, तो मैं इन सभी को क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो सिंपल कैलकुलेटर यहां पर एग्जाम में अलाउड है, जिस तरह का आप एग्जाम यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 5 + 20 + 24 + 20 + 15 + 12 + 56 + 48 + 27। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 227। ये सम आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 227 आ गया। नाउ 227, नाउ इट इज 227 डिवाइडेड बाय व्हाट, किससे डिवाइड करेंगे, जितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एक्चुअली द टोटल नंबर ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार यहां पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इन सभी का सम टोटल कर लेंगे, इन सभी का यहां पर हम क्या कर लेंगे, सम टोटल कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 + 10 15, 15 + 8 23, 23 + 5 28, 31 33 एंड 41 एंड फर्दर 47 एंड 50। तो ये यहां पर हो जाएगा 227 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल बी द मीन, दैट विल बी द मीन वैल्यू ओवर हियर। काइंडली प्लीज आंसर यस और नो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। काइंडली फटाफट से यस और नो आंसर कीजिएगा अगर आपको यहां पर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है या फिर नहीं आया। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। अर्थमेटिक मीन निकालना सिंपल सी बात होती है, लेकिन जब आपको यहां पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, उसके केस में जब आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आपने उसको उस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड फिर सम करना है, एंड फिर सम करना है। जैसे हमने 1 × 5 किया, जैसे हमने यहां पर 1 × 5 किया, सबसे पहले काइंडली प्लीज पे अटेंशन शर्मा जी। तो यहां हमने 1 × 5 किया, 2 × 10 किया, 3 × 8 किया, 4 × 5 एंड सो ऑन, ओके। एंड फर्दर इन सभी को एड ऑन कर दिया, इन सभी को हमने एड ऑन कर दिया, एंड एड ऑन करने के बाद जो हमारा सम टोटल आया दैट इज 227। एंड फर्दर अब यहां पर, एंड फर्दर अब यहां पर हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम टोटल, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल दैट इज 5 + 10 एंड सो ऑन, ओके। सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, 227 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज वुड बी द मीन ओवर देयर। तो वो हमारा यहां पर मीन आ जाएगा। तो यहां पर MO5TG का क्वेश्चन है कि सैंपलिंग डेमो वीडियो से करनी है। ये सर सैंपलिंग जो है ऑलरेडी हमने 26 को जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने कवर कर ली थी, तो आप वहां से सैंपलिंग को गो थ्रू कर लीजिए। Otherwise it will be the doubling of the concepts over there and definitely it won't help others and also आप अपना सिलेबस उतना कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, आपको उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर चीजों को कवर करना होगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें जो है हम फ्रूटफुल मैनर में यहाँ पर कवर कर पाए। ओके, आई वांट एटलीस्ट मैं आपके 2 मॉड्यूल्स यहां पर अच्छे से कवर अपने एंड पर करवा दूं, एंड फर्दर वी विल ट्राई कि हम 3 मॉड्यूल्स को ही कवर कर लें, लेकिन आई वांट कि यहां पर कोई भी कंसेप्ट ना रहे। तो 2 मॉड्यूल्स भी अगर आपके अच्छे से हो जाते हैं तो आपके एग्जाम में आप डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे, अगर आप बाकी के मॉड्यूल में से सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको बताऊंगा उनको भी कवर कर लेंगे, राइट। सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि यहां पर ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर मेरे पास जो डाटा दिया गया है ये क्लास इंटरवल दिया गया। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन ओवर हियर, काइंडली प्लीज डू लेट मी नो। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो कौन सी टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिया गया, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, राइट, राइट और रॉन्ग, दिस इज अ कंटिन्यूअस, नो दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज ओवर देयर। मैं यहाँ पर टाइप के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, वेरिएबल टाइप के बारे में, मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर मुझे रेंज के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, ठीक है। तो यहां पर जब भी मुझे क्लास इंटरवल दिया होगा ना, तो मुझे यहां पर किस चीज को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इस चीज में मुझे क्लास मार्क को कैलकुलेट करना है। किस चीज को कैलकुलेट करना है, क्लास मार्क को। व्हाट इज क्लास मार्क, क्लास मार्क इज इक्वल टू व्हाट, अपर क्लास लिमिट एंड प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अ क्लास मार्क। तो यहां पर क्लास मार्क क्या होगा, दिस विल बी 20 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10, एंड फॉर द 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30, 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50, एंड 60 + 80 दैट इज इक्वल टू 140, 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 70 ओवर देयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लास मार्क आ गया, दिस इज द क्लास मार्क ओवर देयर, दिस इज द क्लास मार्क ओवर हियर। एंड जब हमने क्लास मार्क को कैलकुलेट कर लिया, जब हमने क्लास मार्क को यहां पर कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद हमें यहां पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, दैट इज 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50 ओवर हियर, दैट इज 10 × 5 इज इक्वल टू 50 ओवर हियर, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 50 एंड 30 × 8 दैट इज इक्वल टू 240,
that is equal to 240 and for the 15 to 10 that is equal to 500. तो ये 50 था हमारे पास and for the 17 to 7 that is equal to 490 and अब हम इन सभी को क्या कर देंगे ऐड ऑन कर देंगे and divided by क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर देंगे. So it will be 50 plus 240 that is equal to 290 and 790 plus 490 plus 490 that is equal to 1280 that is equal to the 1280 over here divided by भी यहाँ पर फ्रेंड्स है उनको ऐड कर देंगे 5 plus 8 13 plus 10 23 plus 7 30 over there. इनको आपस में ऐड ऑन कर देंगे and that will be the answer. So 1280 divided by 30 over there that is equal to 42.67. That is equal to 42.67 over there. Right? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है. जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कीजिएगा. सो दैट विल बी द आंसर रिलेटेड टू जहां पर आपको क्लास इंटरवल दिया होगा यानी कि कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी वहां पर आपको क्लास मार्क को कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद आप यहां पर आगे बढ़ेंगे. क्लास मार्क को कैलकुलेट करने के बाद आप यहां पर आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. राइट? सो लेट्स मूव फर्दर ओवर हियर. तो यहां पर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बारे में बात की गई है. कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मुझे 50 स्टूडेंट्स का एवरेज अलग से दे दिया, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज अलग से दे दिया एंड मुझे उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है. जैसे इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहा गया? एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स. एवरेज मार्क्स जो यहां पर ग्रुप के दिए गए 50 स्टूडेंट्स के ग्रुप के दिए गए मैथमेटिक्स में दैट इज 60 ओवर देयर एंड जो अदर ग्रुप है 50 स्टूडेंट्स का उनका एवरेज मार्क्स जो दिया गया मैथमेटिक्स में वो 90 दिया गया. अब मुझे यहां पर कंबाइंड 100 स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करना है तो उसके केस में कैसे करेंगे? दैट विल बी इक्वल टू जो मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पहले ग्रुप के वो कितने हैं 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय उनका एवरेज कितना है? एवरेज है 60 एंड फर्दर दूसरे ग्रुप का साइज कितना है 50 एंड फर्दर उनका एवरेज कितना है? दैट इज इक्वल टू 90 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? n1 plus n2 दैट इज 50 plus 50. तो इस तरह से मैं कंबाइंड एवरेज को कैलकुलेट कर सकता हूं. So 50 into 60 that is equal to 3000 plus 4500 that is equal to 7500 and divided by 100 that is equal to 75. तो आंसर जो होगा that will be 75 over here. That is a combined arithmetic mean over here. That is a combined arithmetic mean over here, right? तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पर. इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां पर. तो आपको न्यूमेरिकल के ऑप्शंस नहीं आने वाले हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर न्यूमेरिकल के ऑप्शंस नहीं होंगे तो कैलकुलेशन वहां पर सीखनी पड़ेगी. राइट? तो यहां पर आपके पास मैथमेटिक्स आपने ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी क्या क्या आपके पास जो सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास पैरामीटर है उसके केस में क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएगी क्या क्या रिक्विजिट्स हो जाएगी उसी के बेस पर मेरिट्स डिमेरिट्स है. तो रिजिडली डिफाइंड है बिल्कुल. आपके पास एक बार आपने मीन कैलकुलेट कर लिया वो चेंज नहीं होगा एंड इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू फॉलो है, सभी आपके पास ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है एंड फर्दर कैलकुलेट करना इजी है. फर्दर एलिजिबल ट्रीटमेंट जो है वो यहां पर हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड फ्लक्चुएशंस नहीं बढ़ती यहां पर. सैंपलिंग में से अगर डाटा चेंज भी करते हैं तो ज्यादा चेंजेस देखने को आप मिलेंगे नहीं आपको. ठीक है? एंड फर्दर डीमेरिट्स के अर्थमेटिक मीन के क्या एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है? यस करता है. अगर मेरे पास एवरेज हाइट जो है वो यहाँ पर 50-60 के आसपास है एंड एक पर्सन की 200 हो जाती है तो डेफिनेटली मीन आपका कहां का कहां पहुंच जाएगा. ठीक है? तो उस चीज का डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है एंड फर्दर ये एवरेज होता है वो रेशियोज का नहीं हो सकता. ये रेशियोज का एवरेज नहीं कर सकते, परसेंटेज का एवरेज नहीं कर सकते, वो प्रॉपर नहीं होता आपके पास. ठीक है? तो ये भी आपके पास क्या है पर्टिकुलरली एक पॉइंट मिसिंग है. एंड फर्दर अगर आपके पास कोई आइटम्स मिसिंग है तो आप एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हो. तो ये भी यहां पर इशू है. ओके? तो यहां पर कंबाइंड जो मीन है उसके बारे में पूछा गया कि कंबाइंड मीन को दोबारा से रिपीट किया जाए. देखिए कंबाइंड मीन का कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है. आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा, वहां पर पूरा का पूरा रिपीटेटिव रहेगा. तो अगर फिर भी कोई इशू रहता है डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. ओके? अभी हम इसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं. व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है पर्टिकुलरली फटाफट से यहां पर आपको देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या. जब भी मुझे कंपाउंडिंग इफेक्ट देखना होता है तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं. एंड ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना मैथमेटिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो अर्थमेटिक मीन से कम होती है. एंड ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करते हैं. नेगेटिव वैल्यूज के लिए ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट हम नहीं करते हैं. इस चीज का ध्यान रखेंगे. सारी की सारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर नहीं होंगी. सिर्फ फर्स्ट क्लास जो है वो यहां पर यूट्यूब रहने वाली है. बाकी सभी क्लासेस हमारे कोर्स में कवर होंगी जिसको आप एनरोल कर सकते हैं विजिटिंग द वेबसाइट. मैं आपको कंफर्म कर दूंगा इस वीडियो के एंड में कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है जिसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं. राइट?
अदरवाइज आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या रहता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, लेट्स से द केस कि मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 यहां पर ये टर्म्स है एंड इसका ज्योमेट्रिक मीन मैंने कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे? इट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 5 रूट ऑफ द सेम एंड 5 रूट ऑफ द सेम। तो ये पर्टिकुलर क्या रहेगा? दिस विल बी द ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां पर कैलकुलेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस लीस्ट चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जाम में आएंगे, अगर आएंगे भी तो स्किप कर दीजिए क्योंकि कैलकुलेशंस में इतना ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। एंड इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं है, लीस्ट टाइमिंग्स रहने वाले हैं, राइट। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड रूट ऑफ द सेम। ओके, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड ज्योमेट्रिक में। एंड यहां पर जैसे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, यहां पर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। इस केस में अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है ज्योमेट्रिक मीन की, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहां पर 1 into 5 नहीं करने लग जाना, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपली वैल्यू को लिखिएगा, जैसे कि 1 raised to power 5 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to power 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 raised to power 4, यानी कि दिस वन raised to power दिस वन, दिस वन raised to power दिस वन, ठीक है। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया एंड अंडर रूट कर दिया। कितनी आएगी? रूट कौन से वैल्यू की होगी? इट विल बी फ्रीक्वेंसी को, देखिए फ्रीक्वेंसी को काउंट कीजिए, 5 3 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, तो यहां पर 14 रूट होगा। दिस विल बी द 14th रूट, दिस विल बी द 14th रूट। तो यहां पर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक भी छोड़ सकते हैं वो, ठीक है, कि क्या आंसर सही रहने वाला है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना, तो भी आंसर कर पाएंगे। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन के केस में ये चीज को ध्यान रखना है, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सिर्फ ये चीज रखनी है, क्या चीज? पहली चीज कि वैल्यू, अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू देखें तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है वो अर्थमेटिक मीन से कम होती है। दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज आपको कैलकुलेशन की ऑलरेडी मैंने यहां पर बता दी है। इज दैट राइट? ये चीज यहां पर क्लियर होगी, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। डेली की जो क्लासेस है वो यहां पर मॉर्निंग में रहने वाली है फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड्स, तो 6:30 ऑनवर्ड यहां पर क्लासेस रहने वाली हैं, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। कोई भी क्लास मिस करने का मतलब है, कैलकुलेटर डेफिनेटली सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अलाउड रहेगा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं रहेंगे, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। जो हार्मोनिक मीन होता है दैट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है नॉर्मल मीन का। नॉर्मल मीन क्या करते हैं? जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x4, ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल मीन हो गया। जब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होता है तो इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि n हो जाएगा ऊपर एंड डिवाइड हो जाएगा, एंड जो भी टर्म्स है उनको 1 डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हो गया आपके पास मीन, ये वाला क्या हो गया? दिस इज द मीन ओवर हियर, एंड ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगी? दिस इज अ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करते हैं किस केस में? जब हमने दो वेरिएबल्स या उसके बारे में जब हमने बात करनी होती है, जब हम उनकी सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि तब हम पर्टिकुलरली किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खास करके जब हम रेशियोज के बारे में बात करते हैं, खास करके जब हम रेशियोज के बारे में बात करते हैं तब हम पर्टिकुलरली किसका इस्तेमाल करते हैं? हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। तब हम हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल जो है वो यहां पर करते हैं। यानी कि अगर मुझे 1 2 3 4 5 का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 5 है, तो 5 यानी कि n ऊपर हो गया, एंड फर्दर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.25 1 डिवाइडेड बाय 4.25 प्लस 0.2। तो इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेशंस जो है उनको करते हुए हार्मोनिक मीन यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट राइट? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है? काइंडली प्लीज डू कंफर्म हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बीच में आपको क्लियर हो गया कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एंड नॉर्मल मीन क्या होता है। काफी ज्यादा आसान है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर मेरे पास यहां पर हार्मोनिक मीन जो एक केस है इसके बेस में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, इफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तो उसके केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके केस में भी कैलकुलेशन काफी इजी है। अब नंबर जब n देखना है तो फ्रीक्वेंसी को टोटल कर दो, जब टोटल n देखना होता है तो फ्रीक्वेंसी को टोटल कर दो, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 प्लस 4 14, तो यहां पर हो गया 14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय द टर्म ओवर देयर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टर्म, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से आप हार्मोनिक मीन जो है
वो यहां पर डिस्क्रीट वैल्यू जो आपके पास दी गई है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, उसके केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। काइंडली सिंपल सिंपल सी मेथोडोलॉजीज हैं, इनको रिटेन कीजिएगा एंड माइंड में रखिएगा, दैट इज इट। कोई भी यहां पर मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में चीजों को कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत रह जाता है कि डिस्क्रीट कंटीन्यूअस वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इनके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रह जाता है एंड हम आगे कंसेप्ट्स के ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। सो काइंडली प्लीज डू पे अटेंशन टू द सेम, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो एक चीज सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज लेसर देन दैट व्हाट, जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज एक्चुअली लेसर देन व्हाट, दैट इज लेसर देन द अर्थमेटिक मीन ओवर देयर, दैट इज लेसर देन द अर्थमेटिक मीन ओवर देयर। एंड फर्दर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर रिलेशनशिप क्या रहता है हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। जो आपके पास अर्थमेटिक मीन है, जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, that is equal to square of the geometric mean over there. Kindly please note it down, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, काइंडली प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहां पर जो रिलेशनशिप है बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, दैट इज अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय द हार्मोनिक मीन is equal to the square of the geometric mean over there, is equal to square of the geometric mean over there. So that is the value related to it. आई होप कि आपको ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर, दैट इज इक्वल टू फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इफ देयर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन। तो सिंपल रिलेशनशिप को इस्तेमाल कीजिएगा। अर्थमेटिक मीन है 16 के इक्वल, अर्थमेटिक मीन जो है वो 16 के इक्वल है एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो दिया गया आपको, किसके इक्वल दिया गया, वो यहां पर दिया गया आपको 8 के इक्वल। सो 8 स्क्वायर, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 64, यानी कि हार्मोनिक मीन जो हो गया वो हो गया आपका 64 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 4 ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 4 ओवर हियर। तो यहां पर गीता रानी जी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर पोस्ट कर दिया है। क्वेश्चन करवाने का सिंपल सा फंडा है ताकि आपके जो भी सिंपल से कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आप इन चीजों को रिटेन कर पाए। इस वीडियो का पीडीएफ में बार बार से रिपीट कर रहा हूं, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर जो आपको फॉर्मेट मैंने बताया था, जो मैंने आपको यहां पर फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट में आप फर्दर फॉरवर्ड कर दीजिए एंड वहां पर जाकर के आप पर्टिकुलरली मैसेज कर दीजिए, तो भी आपको यहां पर जो फॉर्मेट है पीडीएफ है इस वीडियो का वो मिल जाएगा, राइट। अगर आप पेड मेंबर हैं, ऑलरेडी आप कोर्स में हैं, तो वहां पर आपको पीडीएफ में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा आगे आने वाली सभी वीडियो के लिए भी, एंड आगे आने वाली सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू ही अवेलेबल रहेगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर, जल्दी से जल्दी आगे मूव करते हैं। तो मीडियंस एंड क्वार्टाइल के बारे में बात करते हैं। मीडियन पर्टिकुलर क्या होता है, मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो सेंटर वैल्यू है, इसकी जो मिडल वैल्यू दैट इज अ मीडियन, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, एंड क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल पर्टिकुलरली वो तीन वैल्यूज हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो क्वार्टाइल है, दैट इज द क्वार्टाइल। यानी कि मेरे पास अगर मैं मीडियन की बात करूं तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, हाफ इधर, एंड फर्दर अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूं, ये 3 पॉइंट है जो इसको अलग अलग में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ क्वार्टाइल ओवर देयर, ओके। तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट। सो मीडियन एक पोजीशन है एंड जहां पर अर्थमेटिक मीन है वो एज अ एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मीडियन एक पोजीशन है, मीडियन इज अ पोजीशन ऑफ इट। तो अगर तो मेरे पास जो नंबर्स है, लेट्स से द केस मैं 1 2 3 4 5 इनका मीडियन कैलकुलेट करना चाहता हूं, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो मेरे पास इवन है कि ऑड है, दिस इज ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, 5 है ना टोटल यहां पर, तो ये ऑड नंबर है। तो इसके केस में अगर मुझे मीडियन निकालना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो n मेरे पास क्या है, n इज एक्चुअली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। तो ये यहां पर है 5+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो थर्ड पोजीशन पर यहां पर नंबर है दैट इज अ मीडियन। थर्ड पोजीशन पर जो नंबर है मेरे पास यहां पर वो क्या, मीडियन। यानी कि सबसे पहले जब भी हमने ऑब्जर्वेशंस को मीडियन निकालना है तो हम उनको यहां पर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे, एंड असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हम यहां पर n+1, अगर ऑड टर्म्स हैं तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू द मीडियन, एंड अगर मेरे पास यहां पर
अगर मेरे पास यहां पर जो टर्म्स है वो यहां पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट्स से द केस मेरे पास जो टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। एंड इसके केस में अगर मुझे यहां पर निकालना हो, अगर मुझे इस केस में पर्टिकुलरली यहां पर मीडियन निकालना हो, तो उसके केस में इवन नंबर ऑब्जर्वेशन के केस में क्या करेंगे, जो मेरे पास n डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन होगी, n डिवाइडेड बाय 2, यहां पर n कितना है, यहां पर 6 है, सो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, यानी कि तीसरी ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 है यहां पर। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना आ गया 3, एंड प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। n+1 ऑब्जर्वेशन कौन सी है, n कितना मेरे पास 6 है, n मेरे पास कितना है यहां पर 6 है, एंड n+1 कितना हो गया, n+1 कितना हो गया, यानी कि मेरे पास यहां पर n+1 की वैल्यू आ गई, यहां पर 4 की इक्वल आ गई है, n+1 की वैल्यू जो आ गई है वो यहां पर कितनी आ गई है, 6+1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि उससे नेक्स्ट वाले ले लेंगे, यानी कि फोर्थ वैल्यू, यानी कि फोर्थ वैल्यू। सो 4 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। जब मैंने इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मीडियन कैलकुलेट करना है, जब मैंने इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मीडियन जो है वो यहां पर कैलकुलेट करना है, उसके केस में, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मीडियन कैलकुलेट करना है उसके केस में आप n डिवाइडेड बाय 2 टर्म लेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो वो यहां पर मीडियन बन जाएगा। यानी कि इस केस में जो मीडियन होगा दैट विल बी इक्वल टू 3.5, वो यहां पर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3.5 ओवर हियर, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है, काइंडली प्लीज डू कंफर्म। मीडियन के केस में दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मीडियन ओवर हियर, ओके। एंड अगर मुझे ग्रुप्ड डाटा का मीडियन उठाना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट, लेट्स हैव अ लुक एट इट ओवर हियर। सबसे पहली बात है, ये फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा गया, लेकिन अभी आपको इसको देख करके कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू कंटिन्यूस, जो यहां पर मेरे पास डाटा है, कैलकुलेशन है, उसके बारे में बताया गया। जो मेरे पास कंटिन्यूस यहां पर डाटा है उसके बारे में मुझे यहां पर बताया गया। इस केस में अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं किस तरह से करूंगा, मुझे सबसे पहले यहां पर जो भी क्लास इंटरवल्स है उनको नोट डाउन कर लेना। मेरे पास क्लास इंटरवल्स कौन से हैं, 20 to 30 है, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ क्लास इंटरवल। एंड इनसे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी गई है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 16 18 20 32 एंड 14, राइट। अब यहां पर मुझे क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, इस क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क का मतलब होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ओवर देयर। तो यहां पर मेरे पास क्लास मार्क क्या होगा, दैट इज 30 + 20 दैट इज इक्वल टू 50, 50 डिवाइड 2 यानी कि 25। एंड इस केस में यहां पर 35 एंड फर्दर 45 एंड 55 एंड फर्दर 65। सो दिस इज अ क्लास मार्क। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास यहां पर ये ने क्लास मार्क जो है वो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब मुझे यहां पर लेस देन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, लेस देन जो आपके पास टाइप है, लेस देन टाइप जो CF होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाना, दैट्स इट। यानी कि पहले में 16 रहेगी, दूसरे में 16 + 18 यानी कि 44, 16 + 18 34, नॉट 44, दैट इज इक्वल टू 34, 34 + 20 that is equal to 54, 54 + 32 that is equal to 86 and 86 + 14 that is equal to 100 over there। तो ये मेरे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमने यहां पर क्या कर ली है, सिलेक्ट कर ली है, वो हमने यहां पर क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब इस केस में पर्टिकुलरली आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करना होगा, जो भी आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है, जो भी हमने यहां पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है, यानी कि सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के सभी टर्म्स का एडिशन, सिग्मा ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी के सभी टर्म्स का एडिशन ओवर हियर। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने डिवाइड कर देना किसके साथ, उसको हमने डिवाइड कर देना 2 के साथ। यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास क्या 100 है, 100 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 50 आ गया। ये मीडियन के केस की बात कर रहा हूं, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियन ओवर हियर। ये 50 डिवाइडेड बाय मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 आ गया, ओके। अब पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जहां कहीं पर आपके पास जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जहां कहीं पर जिस क्लास इंटरवल के लिए आपके पास जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर इंक्रीज हो रही है, वो यहां पर
इंक्रीज हो रही है n डिवाइडेड बाय 2 से, वो यहां पर इंक्रीज हो रही है n डिवाइडेड बाय 2 से, उस पर्टिकुलर इंटरवल को हम क्या मानेंगे, उस पर्टिकुलर इंटरवल को हम अपना खास इंटरवल मान लेंगे, राइट। यहां पर हमने n डिवाइडेड बाय 2 किया, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 किया, दैट इज इक्वल टू 50। एंड यहां पर इंक्रीज कहां पे जाके हो रही है, 54 जो है वो एक्सीड करता है, 54 इज एक्सीडिंग 50 ओवर देयर। तो यानी कि इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को हम मार्क कर लेंगे, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को हम क्या कर लेंगे, यहां पर मार्क कर लेंगे, राइट। एंड फर्दर इसी के बेस पर हम यहां पर आगे चलेंगे, इसी के बेस पर हम आगे चलेंगे एंड न्यूमेरिकल में जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला में वैल्यू को फिल इन करेंगे मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज एक्चुअली जब हमने यहां पर ग्रुप डाटा के लिए मीडियन को कैलकुलेट करना है एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट इट इज, ओके। अब यहां पर I1 यानी कि इंटरवल 1, यहां पर इंटरवल यानी कि लोअर इंटरवल, ठीक है। तो I1 क्या हो गया, I1 भी इक्वल टू 40 ओवर देयर, मैं यहां पर वैल्यूज को लिख दे रहा हूं। सो I1 भी इक्वल टू 40 ओवर देयर एंड प्लस I2 कितना हो गया, I2 वुड बी द अपर क्लास इंटरवल, तो यानी कि 50 हो गया, यानी कि 50 माइनस 40 ओवर देयर एंड फर्दर यहां पर हो गया n डिवाइडेड बाय 2। n कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, दैट इज n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो n यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आपको लिखनी है ना, ये जिस क्लास को हमने मार्क किया है उससे पहले वाली क्लास के लिए, उससे पहले वाली क्लास के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो लिखेंगे, वो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास यानी कि वो यहां पर क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 34, दैट विल बी इक्वल टू 34 एंड डिवाइडेड में क्या जाएगा, यहां पर 40 के नीचे डिवीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म में है, तो डिवीजन में क्या रहेगा, यहां पर जिस क्लास को हमने मार्क किया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 54, दैट इज इक्वल टू 54 ओवर हियर, ओके। तो ये 34 हो गया एंड फर्दर जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे, सॉरी यहां पर 54 नहीं, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये जिस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि इस क्लास के लिए क्या फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 20, तो यहां पर ये 20 आ जाएगा, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है आई नो, अगर मैं आपको दोबारा से फटाफट से एक्सप्लेन करूंगा तो आप फटाफट से यहां पर इसको समझ जाएंगे, अगर मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो फटाफट से आप इस चीज को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सिंपली हमने किया गया, जो भी हमारे पास ग्रुप डाटा होता है उसको हमने पहले क्लास इंटरवल एंड फर्दर फ्रीक्वेंसी को हमने नोट डाउन कर लिया एंड फर्दर फिर हमने क्लास मार्क को कैलकुलेट कर लिया, क्लास मार्क को कैलकुलेट करने के बाद हमने n डिवाइडेड बाय 2 यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 को कैलकुलेट किया व्हिच केम आउट टू बी 50। जहां कहीं पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से अबव जा रही है आपने उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपका I1 बन गया, ये आपका I2 बन गया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 माइनस I1 कर दिया एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 34 उसको यहां पर हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड डिवाइडेड बाय कर दिया जिस क्लास को हमने मार्क किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद करना आपने, क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको फिर से यहां पर बता देता हूं, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I1 एंड फर्दर n divided by 2 minus CF of previous class and यहां पर डिवीजन यहां पर नहीं आएगा एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ओके। सो दैट इज अ फॉर्मूला रिलेटेड जिसको आप याद रखेंगे एंड फर्दर इसके थ्रू आप यहां पर जो आपके पास मीडियन है ग्रुप डाटा के लिए आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट वुड बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है, इस पर्टिकुलर केस में मीडियन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपके पास यहां पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, दिस इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज गिवन टू अस, ओके। तो यहां पर मेरे पास एक्स एंड एफ की जो वैल्यूज है वो यहां पर गिवन है मेरे पास यहां पर, एंड इसके रिलेटेड मुझे यहां पर मीडियन को कैलकुलेट करना है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मुझे मार्क को कैलकुलेट करने की, क्लास मार्क को कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जो वैल्यूज है मैंने यहां पर मार्क कर दी एंड फर्दर मैंने यहां पर लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, यानी कि 5, 15 एंड फर्दर 23, 28 एंड 31 एंड 33, ठीक है। ये वैल्यूज को लिख दिया मैंने यहां पर एंड इसके बाद हमने यहां पर n डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेट किया, कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल N कितना है 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 28, 31, 33 एंड 41 एंड 47 ओवर दिया। तो मेरे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है यहां पर दैट इज इक्वल टू 47 ओवर हियर, राइट। एंड 47 डिवाइडेड बाय 2 हमने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 23.5, दैट इज इक्वल टू 23.5। जहां कहीं मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 से ज्यादा हुई
उससे अगली वाली क्लास को मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, यानी कि ये वाली क्लास को मैंने मार्क कर लिया, राइट, उसको मैंने मार्क कर लिया। एंड ये जो 28 है दैट विल बी द, यहां पर जो ये क्लास होगी 4 जो होगी दैट विल बी द मीडियन। यहां पर मुझे आगे फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर जो मीडियन होगा दैट विल बी द 4 इटसेल्फ। तो ये जो पर्टिकुलर यहां पर रहेगा वैल्यू रहेगी, दिस विल बी द मीडियन पॉइंट ओवर हियर, राइट। ये चीज यहां पर क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर ओवर हियर। यहां पर देखिएगा मेरे पास वैल्यूज जो दी रखी हैं, दैट इज 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 ओवर देयर। ये वैल्यूज मेरे को दे रखी हैं एंड इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। लेकिन ये जो टाइप मुझे दे रखी है ना, दिस इज इंक्लूसिव टाइप। ये मेरे पास इंक्लूसिव टाइप है। इंक्लूसिव टाइप को एक्सक्लूसिव टाइप में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाउंड्रीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाउंड्रीज को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अगर मैंने यहां पर इसको एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव टाइप में इसको कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना। जैसे मान लीजिए न्यू अपर क्लास इंटरवल मैंने कैलकुलेट करना है, न्यू अपर क्लास इंटरवल मैंने कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो मेरे पास अपर क्लास इंटरवल था यानी कि 9 एंड प्लस जो अगली क्लास का लोअर क्लास इंटरवल है 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा ये 9.5। इसी तरह से मैं लोअर क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लूंगा। लोअर क्लास इंटरवल जो नया वाला बनेगा यहां पर, वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा जो मेरे पास लोअर क्लास इंटरवल था 5 एंड साथ में माइनस का साइन एंड फर्दर 10 minus 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4.5। तो मेरे पास रेंज यहां पर जो न्यू था वो बन गई यहां पर 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास मैंने जो इंक्लूसिव टाइप थी, जो इंक्लूसिव टाइप थी उसको मैंने एक्सक्लूसिव टाइप में यहां पर कन्वर्ट कर दिया। उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज मेरे पास ऑलरेडी गिवन है एंड यहां पर सेम फंडा हम आगे चला सकते हैं। सेम फंडा जो है वो हम यहां पर आगे चलाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कि आप पूरी फ्रीक्वेंसीज को ऐड ऑन करेंगे, टोटल करेंगे एंड इट केम टू बी 100 ओवर देयर। इनको हमने सभी को टोटल कर लिया, वो 100 आ रही है, 100 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, वो 50 आ गया। एक्सीड कहां पे कर रहा है, यहां पर आके एक्सीड कर रहा है, तो इसको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क कर लेंगे तो ये मेरे पास मीडियन क्लास बन गई, दिस इज अ मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला फिर से वही चला सकते हैं, तो फॉर्मूला वही फिर से चला सकते हैं। क्या रहेगा फॉर्मूला, I1 यानी कि 14.5 प्लस I2 यानी कि 19.5 माइनस 14.5 एंड फर्दर n डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की कितनी है, दैट इज इक्वल टू 34 माइनस 34 एंड डिवाइडेड बाय जो ये पर्टिकुलर क्लास मैंने सिलेक्ट करी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी 20 है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम मीडियन जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन। तो आपको ध्यान रखना है, जहां कहीं पर भी आपको पर्टिकुलरली वैल्यू दी गई है, जहां कहीं भी आपको वैल्यू जो है वो यहां पर दी गई है, ठीक है, कौन सी वैल्यू दी गई है, इंक्लूसिव टाइप दी गई है, आपको उसे एक्सक्लूसिव टाइप में वहां पर कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द एक्सक्लूसिव टाइप ओवर देयर एंड उसके बाद आप यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे, राइट। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्वार्टाइल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वार्टाइल मैंने आपको क्या बताया था, क्वार्टाइल वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास जो वैल्यू होती है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि 3 वैल्यूज होंगी जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 वैल्यू 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, यानी कि एक वैल्यू ये होगी n1, एक n2, एक n3। ये मेरे पास 3 अलग वैल्यूज होंगी। जैसे मीडियन के केस में तो सिंगल वैल्यू होती है, क्वार्टर के केस में हमारे पास 3 वैल्यूज होती है जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। Q1 जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर Q1 जिसको हम कहते हैं Q1, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 ओवर दिया। अब यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड फर्दर जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से हमने अबव एंड लोअर को डिफाइन करना होता है कि पास अबव डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा है एंड लोअर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा है। अब जैसे कि मेरे पास यहां पर 3 वैल्यूज, यहां पर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहां पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मेरे पास यहां पर वैल्यू जो है वो यहां पर गिवन है। अब इन वैल्यूज को यहां पर मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं यहां पर टेबुलर फॉर्म में मैंने यहां पर लिख दिया, मेरे पास यहां पर क्लास इंटरवल आ गया एंड फ्रीक्वेंसी आ गई एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी आ गई, राइट। अब ये वैल्यूज मेरे पास यहां पर आ गई है। अब इसके केस में पर्टिकुलरली हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख लिया। अब जब मैंने मीडियन निकालना होता था, मीडियन निकालने के लिए मैं n डिवाइडेड बाय 2 करता था। हम क्या करते थे, n डिवाइडेड बाय 2 करते थे। लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में देखिए, मीडियन आपने जब यहां पर क्वार्टाइल निकालना है, तो जब आप Q1 की बात करते हैं, जब Q1 की बात करते हैं तो आपने कैलकुलेट करना है n डिवाइडेड बाय 4, तब आपने करना है n डिवाइडेड बाय 4 एंड जब आपने Q2 कैलकुलेट करना है उसके केस में आपने करना है n डिवाइडेड बाय 2 ओवर देयर, तो आपने करना है n डिवाइडेड बाय 2, राइट। एंड जब आपने Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 निकालना है उसके केस में आपने क्या निकालना है, उसके केस में आप निकालेंगे 3n डिवाइडेड बाय 4, 3n डिवाइडेड बाय 4।
अगर आप रेशियोज वाइज देखें तो ये 25% के ऊपर है, ये 50% के ऊपर है, ये 75% के ऊपर है, राइट। तो इस तरह से आप यहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यानी कि अगर मुझे Q1 निकालना है तो n डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। n डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है मेरे पास यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 है। 200 डिवाइडेड बाय 4 किया तो वो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50 के इक्वल आ गई। जहां पर मेरे पास 50 के साथ एक्सीड कर रहा है, ये वाली क्लास पर्टिकुलरली मेरे पास Q1 के लिए मेरे पास यहां पर मेजर क्लास बनेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट विल बी 25 प्लस जो यहां पर 30 माइनस 25 है, एंड फर्दर यहां पर n डिवाइडेड बाय 4 आएगा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 50, एंड माइनस जो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की वो आ गई 48, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इसी वाले सेशन की वो आ गई 12। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस वुड बी रिलेटेड टू Q1। ये Q1 की कैलकुलेशन है, दिस इज फॉर Q1। अगर मुझे Q2 की कैलकुलेशन करनी हो तो n डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। n डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 100, ठीक है, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 100 ओवर है। 100 से एक्सीड कर रहा है ये वाले पॉइंट के ऊपर, तो इसको पिक कर लेंगे, इसके हिसाब से वैल्यू लिख लेंगे। यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी, लोअर क्लास इंटरवल की 35 प्लस 40 माइनस 35, एंड फर्दर n डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 100 ओवर देयर, एंड माइनस क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस ओवर हियर जो मेरे पास यहां पर वैल्यू आ रही है 100 आ गई ना, यहां पर 200 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एंड फर्दर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है पिछली वाली की दैट इज इक्वल टू 96, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो इस बारे की है दैट इज इक्वल टू 24, एंड इसी तरह से हम थर्ड वाले के लिए करेंगे, इस तरह से क्वार्टर 3 के लिए करेंगे, ठीक है। 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 के साथ करेंगे। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है वो क्वार्टर की कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला था, दैट वाज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I1 एंड फर्दर n डिवाइडेड बाय 4, n डिवाइडेड बाय 2 ये पर्टिकुलर मीडियम के लिए n डिवाइडेड बाय 2, एंड क्वार्टर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी रेंजेस बता दी हैं, एंड माइनस जो भी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी पिछली वाली इंटरवल की डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। सो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू मेमोराइज, राइट। तो इसके साथ आप इजीली कैलकुलेशंस जो है वो यहां पर कर सकते हैं। अब मेरिट्स क्या है मीडियंस की, मीडियन जो होता है वो डेफिनेटली रीजनली डिफाइंड, एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है इसके ऊपर, एंड फर्दर इवन एक्सट्रीम वैल्यूज अगर नहीं भी नोन है मीडियन फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ आइटम अगर हमारे पास नोन है तो भी हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड डीमेरिट क्या है, मीडियन जो होता है वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं होता, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है, ना ही ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ वैल्यू का नंबर पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का, दैट इज इट। एंड फर्दर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन अगर होगी तो डेफिनेटली आपका जो मीडियन होगा वो अल्टर करेगा, क्योंकि आपके पास जो रेंज होगी वो डिफर करेगी, ठीक है। एंड फर्दर इसका आगे एलिजिबिलिटी जो ट्रीटमेंट है वो हम नहीं कर सकते। दैट इज रिलेटेड टू मोड। तो मोड पर्टिकुलरली क्या है, मोड है सेट ऑफ नंबर है जहां पर हम पर्टिकुलरली उसको मैच करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर हमने मोड निकालना हो, अगर हमने यहां पर मोड कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से मोड को हम कैलकुलेट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट, लेट्स हैव अ लुक एट इट कि हम मोड को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिएगा अगर मुझे यहां पर मोड को कैलकुलेट करना है तो मुझे यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। मोड इज सेट ऑफ नंबर जो यानी कि सबसे ज्यादा बार अकर करेगा उसके बारे में निकालेंगे। तो जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है वही हमारे पास क्या है, वही हमारे पास मोड है, ठीक है। लेट्स से केस जैसे यहाँ पर 34 को देखूं तो 34 जो है वो यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हुआ, एंड उसके बाद ये दूसरी बार रिपीट हुआ। 36 जो हो रहा है वो यहाँ पर 1 टाइम एंड फर्दर 2 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर मैं मोड निकाल सकता हूं, यानी कि जितनी ज्यादा बार यहां पर रिपीट होगा, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो वैल्यू अकर हो रही है दैट इज द मोड, उसी को हम मोड कहते हैं, ओके। तो अगर हमने ग्रुप्ड डाटा का मोड निकालना हो, अगर हमने ग्रुप्ड डाटा का मोड निकालना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देख लेंगे, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो आपके लिए फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी गिवन है, कुछ एक फॉर्मूला यहां पर सेम है, जैसे कि यहां पर अगर आपको पिछला फॉर्मूला याद हो वहां पर भी I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1 था, एंड फॉर द n डिवाइडेड बाय 2 था। तो ये वाला चीजें डिफरेंट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू एंड नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, अदरवाइज चीजें सेम है, राइट। तो यहां पर आपके लिए सबसे पहले यहां पर देखिए आपके पास जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज गिवन। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है 16, 18, 20, 32 एंड 14। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट कर रही है, इसी इंटरवल में रिपीट कर रही है ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसी इंटरवल में रिपीट कर रही है ना फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो ये आपके पास I2 I1 की वैल्यू तो आ गई, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई 24, जो I2 की वैल्यू थी वो आ गई आपके पास 24 आ गई। ये आपके पास कौन सी क्लास बन गई, दिस विल बी द मॉडल क्लास। ये क्लास कौन सी बन गई, दिस विल बी द मॉडल क्लास ओवर हियर। एंड I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, एंड I1 की वैल्यू जो आ गई मेरे पास आ गई 20 के इक्वल आ गई, राइट। एंड जो इस ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसको हम F1 कहेंगे, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे, एंड इस अगली फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे।
अगर इसको मैंने सॉल्व करना तो किस तरह से करेंगे, यानी कि 20 प्लस 24 माइनस 20 एंड फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसको f1 माइनस f0। f1 कितना है आपके पास 32 एंड माइनस पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 थी यहां पर, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ f1 के 2 टाइम्स यानी कि 64 माइनस f0 कितना आपके पास 20 एंड माइनस f2 यानी कि वो कितना 14, राइट। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन डू कैलकुलेट द मोड ओवर हियर। तो क्या स्टेप किए हमने मोड कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर, सबसे पहले हमने देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो है कहां पर, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। एंड कैलकुलेट करने के बाद हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के बाद यहां पर पर्टिकुलरली जो वैल्यू थी, ठीक है, उसको f1 कह दिया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको f1 कर दिया, अगली वैल्यू को f2 एंड पिछली वैल्यू को f0, राइट। एंड इन वैल्यूज को फॉर्मुला में फिल कर दिया, दैट्स इट, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड। तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम यहां पर मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई है, काफी ज्यादा आसान चीजें हैं, देखिए सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स को आपको समझने की जरूरत है, दैट इज इट। तो इस तरह से मोड्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मोड मीडियन में क्या रिलेशनशिप है, मोड मीन मीडियन में क्या रिलेशनशिप है, काइंडली नोट इट डाउन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके बेस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लाइव क्लासेस विल बी अवेलेबल इन द फोल्डर इटसेल्फ, विद इन 24 आवर्स होती है वो क्लास यहां पर अपडेट हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पोर्टल है वो अलाउ नहीं करता कि हम 24 आवर से पहले उसको ऐड कर पाए, बट स्टिल विल बी ट्राइंग कि एज अर्ली एज पॉसिबल लाइव क्लास को हम आपके लिए ऐड कर पाए, राइट। तो यहां पर मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ द मीन ओवर देयर। तो इस तरह से आप यहां पर कैलकुलेशन जो है वो यहां पर कर सकते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई है। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन है वो यहां पर हो सकती है। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अर्थमेटिक मीन वाला का रिलेशनशिप क्या था, व्हाट वाज द रिलेशनशिप, दैट वाज अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन एंड फर्दर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, यही रिलेशनशिप था ना वहां पर। एंड फर्दर मीन मोड मीडियम का क्या रिलेशनशिप है, मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन एंड फॉर द मीडियन का 3 टाइम्स, मीन का 2 टाइम्स, मीन का 2 टाइम्स। तो इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एंड इसको रिटेन कर सकते हैं, ओके। तो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, इनको रिटेन करना है हमने ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। अभी डिस्पर्जन की बात है, डिस्पर्जन पर्टिकुलरली होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यूज है, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड फर्दर एक पर्टिकुलर मेरे पास पॉपुलेशन थी 2000 की। अब यहां पर मैंने यहां पर 40 के डिफरेंट सेट निकाल लिए, सैंपल निकाल ले, एंड डिफरेंट सैंपल निकाल लिए, यानी कि 40 का सैंपल निकाल लिया, फिर उसके बाद एक और 40 का सैंपल, फिर एक और 40 का सैंपल, डिफरेंट कॉम्बिनेशन सब, तो यहां पर मैंने सैंपल निकाल लिए एंड सभी का मैंने मीन कैलकुलेट किया, एंड सभी सैंपल्स का मैंने मीन कैलकुलेट किया। लेट्स टेक द केस मैंने थाउजेंड्स ऑफ यहां पर सैंपल्स निकाल लिए 40 के, या फिर 100 या 200 सैंपल्स निकाल लिए 40 के, एंड सभी का मीन कैलकुलेट किया। अब यहां पर एवरेज मीन जो था यहां पर, वो यहां पर सेंट्रल होगा, दैट विल बी हैविंग द सेंट्रल टेंडेंसी, वो यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी होगी। बाकी जो यहां पर सैंपल में निकाले उनके जो मीन होंगे, वो किसी का मीन ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दैट विल बी द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। वो मेरे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर हो सकती है। अब क्योंकि यहां पर मेरे पास जो सैंपल का मीन है वो टोटली यहां पर एग्जैक्टली सेम तो है नहीं है पॉपुलेशन के मीन के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द डिस्पर्जन, उसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी चीज को हम डिस्पर्जन कहते हैं, राइट। तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन, उसी को हम डिस्पर्जन का कंसेप्ट मानते हैं। तो यहां पर भी हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब मेरे पास डिस्पर्जन जो होती है उसमें क्या क्या चीज होती है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मेरे पास रेंज है, क्वार्टरल डिवीजन हो सकती है, मीन डिवीजन हो सकती है, स्टैंडर्ड डिवीजन हो सकती है। तो इन्हीं सभी डिविजन्स के बारे में हम यहां पर पहले सबसे पहले बात करेंगे एंड इन्हीं के कोएफिशिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं, सबसे पहले रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे मैंने आपको कहा कि हाइट जो है वो यहां पर 150 सेंटीमीटर भी हो सकती है एंड 180 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ओके। तो यहां पर रेंज क्या है, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज अ रेंज। तो मेरे पास रेंज कितनी आ गई, 30 आ गई। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी जब मैंने कैलकुलेट करी एंड मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल थे एंड फर्दर मेरे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे, एंड उसके केस में मैंने यहां पर क्या किया, मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू देख ली कितनी जा सकती है एंड सबसे लोएस्ट वैल्यू देख ली, एंड जो रेंज आ गई वो मेरे पास पर्टिकुलरली क्या आ गई, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज अ रेंज ओवर देयर, राइट।
एंड फर्दर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ओवर देयर। अगर मुझे रेंज कैलकुलेट करनी है 12, 16, 14, 18, 22 की, 12, 16, 14, 22, 82, 22 की, तो रेंज की पर्टिकुलर क्या होगी, दैट विल बी 22 माइनस 12, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू इज 22 एंड लोएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, तो रेंज कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 10 ओवर देयर, 10 होगी ना रेंज मेरे पास, ठीक है। एंड अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना हो तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 एंड 22 प्लस 12, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, ये मेरे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ओवर देयर। ओके, अब रेंज क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना, बहुत ज्यादा आसान है, आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजी टू कैलकुलेट। डीमेरिट में क्या है, क्योंकि इसमें सभी ऑब्जर्वेशन तो होती नहीं है शामिल, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होना ये रेंज आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर रेंज है, एंड डेफिनेटली एक्सट्रीम वैल्यूज इंपैक्ट भी डालेंगे इसके ऊपर, एक्सट्रीम वैल्यूज इसके ऊपर इंपैक्ट भी डालेंगे, एंड फर्दर जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होता रहेगा आपके रेंज आपके लिए मैटर नहीं करती है, रेंज विल नेवर मैटर्स टू यू, ठीक है। तो इस चीज का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है ये क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हम काम करने के लिए रखते हैं, जैसे हमारे पैरामीटर्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे रिजल्ट्स सिर्फ इसी वैल्यूज के बीच में वेरी करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं वेरी करनी चाहिए, तो वहां पर रेंज का जो पैरामीटर है वो हमारे काम आ सकता है, राइट। तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फंडा ओवर, राइट। अभी फर्दर हम बात करने वाले हैं यहां पर डिवीजन के बारे में, तो एक तो हो गया रेंज, दूसरा जो हम यहां पर बात करने वाले हैं पैरामीटर, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द क्वार्टाइल डिवीजन ओवर, क्वार्टाइल डिवीजन ओवर। क्वार्टाइल डिवीजन के केस में क्या होता है, आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं ना, जो 3 पॉइंट्स होते हैं Q1, Q2, Q3 जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, दैट इज अ क्वार्टाइल डिवीजन ओवर। एंड क्वार्टाइल डिवीजन का फंडा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जो आपके पास लास्ट क्वार्टाइल था Q3 एंड माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल था Q1 एंड एवरेज ऑफ द सेम, and average of the same, that is actually equal to what, that is actually equal to the Q3 minus Q1 divided by 2 over there, that is a quartile division। अब आपके पास मैंने बताया ना 3 पॉइंट्स है टोटल, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स है जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3 ओवर देयर। तो हमने क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा Q3 minus Q1 divided by 2, that is equal to what, that is equal to quartile division ओवर देयर। एंड फर्दर यहां पर जो Q1 है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है एंड Q3 जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है। क्या होता था इनका रेंज, n डिवाइडेड बाय 4, आपको याद हो n डिवाइडेड बाय 4, ये होता था n डिवाइडेड बाय 2 एंड ये होता था 3n डिवाइडेड बाय 4, 3n डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आ जाए तो कर सकते हो ना इसलिए कैलकुलेट, Q3 एंड Q1 को कैलकुलेट कर लोगे ना, पहले कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा गिवन है, अगर आपके पास डाटा गिवन है एंड फर्दर उन्होंने कह दिया कि Q3 Q1 को कैलकुलेट कर लो एंड क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट कर लो, तो इजीली कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, ग्रुप डाटा के केस में हमने किया था ना, कौन सा फॉर्मूला था, दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2 माइनस I1 एंड फर्दर जो भी n की, जैसे Q1 का होगा तो n डिवाइडेड बाय 4 माइनस जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी पिछली क्लास की डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्क्ड क्लास। ओके, तो इस तरह से Q1 कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से n को अगर 3n डिवाइडेड बाय 4 से कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड चेंज कर देंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर वो, मेरे पास वो पर्टिकुलरली Q3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो Q1 Q3 को कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पर जो क्वार्टाइल डिवीजन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, इनको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दो, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो मीन डिवीजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। मीन डिवीजन क्या होती है, व्हाट इज मीन डिवीजन, मीन पर्टिकुलरली क्या होता है आपके पास, व्हाट इज द मीन ओवर देयर। मीन तो सिंपल सा फंडा है ना आपके पास, मीन डिवीजन तो आपके पास सिंपल सा मीन डिवीजन है, आप मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मीन आपके पास है। तो मीन डिवीजन पर्टिकुलरली क्या रहने वाली है, जैसे आपके पास सभी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड फॉर द अर्थमेटिक निकालना है, आपने अर्थमेटिक में निकालना है सभी डिविजन का, जो भी डिविजन है उनका अर्थमेटिक में निकालना, ठीक है। यानी कि लेट्स से द केस कि मेरे पास मैंने एक्स बार कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये एक्स बार क्या होता है, दिस इज अ मीन, दिस इज द मीन ऑफ द सैंपल ओवर देयर, दिस इज द मीन ऑफ द सैंपल ओवर देयर। एंड लेट्स से द केस मेरे पास टर्म है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास टर्म्स है, ओके। अब इसका मैंने मीन कैलकुलेट किया तो मीन क्या आएगा, यानी कि एक्स बार किसके इक्वल आएगा, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि आ गया मेरे पास 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 5 ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 3 ओवर हियर, 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3 ओवर हियर। तो ये मेरे पास आ गया मीन, आ गया 3 के इक्वल आ गया, राइट, मीन इज इक्वल टू 3 ओवर हियर। अब यहां पर इस पर्टिकुलर मीन के लिए
अब यहां पर इस पर्टिकुलर मीन वैल्यू के लिए हमने डिवीजन निकाली कि क्या डिवीजन निकली एंड उसका मोड करना, क्या करना है उसका एब्सोल्यूट, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमने, एब्सोल्यूट यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। सो इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास टर्म थी 1 - 3 प्लस 2 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 4 - 3 प्लस 5 - 3। तो मैंने यहां पर मीन से डिवीजन देख ली, मीन से डिवीजन देख ली एंड उसे एंड से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर सिर्फ मैंने पॉजिटिव टर्म्स को कंसीडर करना है, मैंने नेगेटिव टर्म कंसीडर करनी है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी द मीन डिवीजन, कि जो मीन आ रहा था मेरे पास उससे कितनी वैल्यू डिवाइडेड, उससे कितनी वैल्यू डिवाइडेड है, दैट इज द मीन डिवीजन ओवर देयर। ठीक है, तो यहां पर 1 - 3 क्या हो गया, -2 यानी कि 2 एंड फर्दर +1 +0 +1 +2। तो ये वैल्यूज आ गई, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो ये मीन डिवीजन कितनी होगी, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 3 4 यानी कि 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 3 + 3 6 6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास मीन डिवीजन कितनी होगी, 6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1.2। ये मेरे पास मीन डिवीजन होगी। अब यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ डिवीजन है दैट इज मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर देयर। तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ डिवीजन हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 0.4 ओवर हियर। ओके, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ डिवीजन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन हो गया, राइट। तो इस तरह से हम यहां पर मीन डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मीन डिवीजन क्या ये सभी पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, क्या ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, यस इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ओवर हियर, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ओवर हियर। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आपके पास यहां पर डाटा गिवन है, इसमें से हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करने कहा जाए, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट कर लेंगे इनका। मीन फटाफट से यहां पर हम कैलकुलेट कर देते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू 12 + 24 + 35 + 41 + 52 + 34 + 46 + 46 + 35 दैट इज इक्वल टू 279, दैट इज इक्वल टू 279 एंड डिवाइड बाय कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। So 279 divided by 8 that is equal to 34.875, 34.875। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 35 के, हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 35 के। अब आसानी से इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। सो 35 - 12, 35 12 - 35 कितना हो गया, 12 - 35, 12 - 35 that is equal to 23 plus 24 minus 35 11 0 6 and further 27 no, not 27, it is 17 17 1 and further 11 and 0 over there। ये वैल्यूज आ गई एंड इनको डिवाइड कर देंगे टर्म्स के साथ। टर्म्स कितनी थी टोटल, 8 टर्म्स थी टोटल, ठीक है, उसके साथ डिवाइड कर दिया। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल बी बेसिकली व्हाट, दैट विल बी द मीन डिवीजन। तो इस तरह से आप आसानी से मीन डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से मीन डिवीजन कैन बी कैलकुलेटेड इजिली ओवर हियर, राइट। अब यहां पर अगर मुझे यहां पर कैलकुलेट करना हो ग्रुप्ड डाटा के लिए, अगर मुझे ग्रुप्ड डाटा के लिए यहां पर मीन को कैलकुलेट करना हो, यानी कि मीन डिवीजन को कैलकुलेट करना हो, तो किस तरह से करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखिए यहां पर अलग से फॉर्मूला है, तो कुछ खास डिफरेंस या दिक्कत वाला फॉर्मूला नहीं है। सिंपली जो आपके पास रेंज है, जो आप डिवीजन निकालते हैं उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इट, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट क्लास इंटरवल्स है, 10 to 12 20 20 to 30 एंड सो ऑन एंड फर्दर। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लास मार्क कैलकुलेट करना है। क्लास मार्क यानी कि मिडल पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो होता है, दैट इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 25 35 45 एंड 55 ओवर हियर। एंड फर्दर उसके बाद हमने एवरेज को कैलकुलेट किया, हमने यहां पर मीन को कैलकुलेट किया। मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है, जब आपके पास यहां पर डिस्क्रीट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, उसके केस में मीन कैसे कैलकुलेट होगा। अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसका हमने निकाला, एवरेज मार्क्स निकाला ना, इसका क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क मेरे पास क्या आया, इसका 15 आया, 15 एंड 25 एंड 35 एंड 45 एंड 55। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 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 मल्टीप्लाई करेंगे एंड वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एंड आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद एड ऑन करेंगे, ठीक है। यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या आएंगी, 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 240। फटाफट से यहां पर कर लेते हैं। एंड फॉर द 25 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 450। 35 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 35 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 700 एंड 45 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 1440।
एंड फर्दर 55 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 770. इन सभी को ऐड कर देंगे 770 प्लस 1440 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 240. तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई 3600. यानी कि इन सभी को ऐड कर दिया मैंने 3600 बन गई डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 100 ओवर देयर. दैट इज इक्वल टू 100 ओवर देयर. तो ये यहां पर मेरे पास क्या आ गया, जो मेरे पास x बार आ गया वो आ गया किसके को आ गया, दैट इज इक्वल टू 36 ओवर देयर. वही चीज हमने यहां पर कैलकुलेट की है. एंड फर्दर अब हमने fx को कैलकुलेट कर लिया. fx को कैलकुलेट कर लिया. fx यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया. फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर x के साथ. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो चीज हमने कैलकुलेट की थी वो उसकी बात है. एंड fx माइनस x बार को कैलकुलेट कर लिया. fx माइनस x बार को कैलकुलेट कर लिया. तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. एंड फर्दर उन सभी को ऐड ऑन कर देंगे एंड दैट विल बी द आंसर ओवर हियर. तो उस तरह से हम आसानी से जो मीन डेविएशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ ग्रुप्ड डाटा ओवर देयर. तो सिंपल से स्टेप है, आपको सिर्फ उन स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या डाटा गिवन है एंड आपने उस डाटा के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है. ओके, अगर आपको आपके पास इंक्लूसिव दे रखी होगी तो इंक्लूसिव को आपको एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. इस चीज का ध्यान रखना है. इंक्लूसिव अगर दे रखी क्लास इंटरवल इंक्लूसिव दे रखी है तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इस चीज का ध्यान रखेंगे. राइट, देन इट्स रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओवर देयर. स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास क्या होती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन? अगर मेरे पास टर्म है 1 2 3 4 एंड इसके केस में मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करनी हो तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले मुझे x बार को कैलकुलेट करना है. x बार वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. जैसे मान लो 5 तक टर्म ले ली तो हमने क्या किया, इसका हमारे पास x बार आ गया 3 के इक्वल. x बार 3 के इक्वल आ गया. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में हम यहां पर x1 माइनस x बार करते हैं, x2 माइनस x बार करेंगे यानी कि xi माइनस x बार. ओके, तो 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 एंड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 3 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. ओके, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 एंड अंडर रूट ऑफ द सेम. दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन. दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन. ओके, एंड जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है दैट इज इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वेरिएंस का अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ओवर हियर. ओके, वेरिएंस इज बेसिकली व्हाट? वेरिएंस इज वेरिएबिलिटी, कि कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है, दैट इज अ वेरिएंस ओवर देयर. कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है, दैट इज अ वेरिएंस ओवर देयर. एंड इसके साथ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड इसका सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपके पास टर्म्स ज्यादा गिवन है आपने फटाफट से कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम इसके केस में ये वाला फॉर्मूला याद रख लो. ये वाला फॉर्मूला याद रख लो. एंड लेकिन ये समेशन आएगा, यहां पर क्या आएगा? समेशन आएगा. दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एंड माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द सेम. दिस इज द फॉर्मूला. समेशन साइन यहां पर आएगा, उस चीज का ध्यान रखना है. यानी कि जितनी भी एक्स वाली टर्म्स है उनको स्क्वायर करके उन सभी को ऐड करके डिवाइड करना है एन से एंड फर्दर माइनस कर देना है एक्स बार स्क्वायर. दैट विल बी द फॉर्मूला रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर देयर. राइट, एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमें वेरिएशन के बारे में बताता है. यानी कि जो मीन वैल्यूज है यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी उनसे कितना वेरी कर रहे हैं. ओके, उसी के बारे में हमें बताता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी कि वॉलेटिलिटी कितनी है. जितनी ज्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी होगी उतनी ज्यादा रिस्कीनेस होगी. उतनी ज्यादा क्या रहेगी? रिस्कीनेस रहेगी. एंड जहां कहीं हम ग्रुप डाटा की बात करते हैं क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड रहती है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी साथ में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में एंड एन किससे रिप्लेस हो जाएगा? एफ से रिप्लेस हो जाएगा. राइट, इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे. इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे. ओके, सो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. एंड जहां पर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है वहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय जो आपके पास एक्स बार है. स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय एक्स बार होगा. दैट विल बी पर्टिकुलरली द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन. यहां कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम कहते हैं. राइट, यहां पर अगर हमने यहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएशन को कैलकुलेट करना है तो उसके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं क्या आंसर रहने वाला है एंड किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड किस तरह से हम क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट इट. सबसे पहली बात है कि हम यहां पर ये डिफरेंट टर्म्स को लिख लेते हैं. तो मेरे पास ये टर्म है 4 5 8 2 3 6 एंड यहां पर ये टर्म पर्टिकुलरली एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है. हम यहां पर एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी कि 16 25 64 4 9 एंड 36 ओवर हियर. राइट, ये मैंने यहां पर टर्म्स जो थी मैंने नोट डाउन कर लिया. स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो आपको याद होगा. दैट वाज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द सेम. ये फॉर्मूला आपको बताया था. ठीक है, एंड यहां पर इस केस में पर्टिकुलरली आप एक्स बार को कैलकुलेट कर लेंगे. एक्स बार का कैलकुलेशन क्या होगा? 4 प्लस 5 9 9 प्लस 8 17 प्लस 2 19
24 एंड 30 ओवर देयर। ये मेरे पास सम टोटल कितना आ गया, 30 इक्वल आ गया। 4 + 5 9, 17 19, 4 + 5 = 9, 9 + 8 = 17, 17 + 2 = 19, plus 3 that is equal to 22, 22 plus 8 6 is equal to 28, not 30, it is 28, it is 28 over here, right? And 28 हमारे पास आ गया, x बार आ गया। अब यहाँ पर x बार स्क्वायर इन सभी को ऐड ऑन कर देंगे, इन सभी टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो फटाफट से कैलकुलेटर उठाते हैं एंड ऐड ऑन कर देते हैं। 16 + 25 + 64 + 4 + 9 that is equal to 118 plus 36 that is equal to 154। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 16 + 25 + 64 + 4 + 9 plus 36 that is equal to 154। तो ये मेरे पास 154 आ रहा है। सो 154 डिवाइडेड बाय टर्म्स कितनी होगी, 154 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। एंड यहां पर मेरे पास जो x बार आ रहा था वो कितना आ रहा था, x बार पर्टिकुलरली 28 डिवाइडेड बाय 6 होगा ना, that will be 28 divided by 6, 28 divided by 6 that is equal to 4.67। तो ये 4.67 का स्क्वायर हो गया, राइट? तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो 4.66 मल्टीप्लाई बाय 4.666 that is equal to 21.7, 21.78 आ गया। एंड 154 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, यहां पर लिख लेते हैं वैल्यू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 4.67 that is equal to 21.8, 21.8 होगी वैल्यू, 21 एंड फर्दर 154 डिवाइडेड बाय 6 that is equal to 25.67 अंडर रूट ऑफ द सेम माइनस 21.8 that is equal to 3.8 एंड अंडर रूट ऑफ द सेम that is equal to 1.966। ओके, तो ये वैल्यूज मेरे पास यहां पर आ रही है। These that will be the standard deviation in this case. This will be equal to the standard deviation, that is 1.96, right? तो गीता रानी जी ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया। आई वांट कि आप अपना पेन कैलकुलेटर जरूर साथ में रखें एंड साथ के साथ कैलकुलेशन जरूर करके देखें, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे इन चीजों को लेकर के। अब जब आपने एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है, जब आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है, तो उसको अगले बाद आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू व्हाट, जो मेरे पास यहाँ पर मैंने सिग्मा कैलकुलेट किया, यानी कि 1.96 यहां पर कैलकुलेट करी है वैल्यू, 1.96 वैल्यू मैंने यहां पर कैलकुलेट करी है, यानी कि मैंने यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। एंड फर्दर डिवाइडेड बाय व्हाट, देखिए यहां पर फॉर्मूला देखिएगा, तो मेरे को यहां पर किससे डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब मैंने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को x बार से डिवाइड करना है। x बार हमने कितना किया था, 28 डिवाइडेड बाय 6 के साथ। सो 28 डिवाइडेड बाय 6 जो था that was actually related to 4.67। तो 1.96 divided by 4.67 that is equal to 0.419। so this is coefficient of variation, this is the coefficient of variation over here, right? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो इस तरह से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरह से यहां पर कैलकुलेशन की जा सकती है, राइट? सो आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फर्दर यहां पर आगे बढ़ते हैं, दैट्स रिलेटेड टू स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। स्क्यूनेस पर्टिकुलरली क्या रहती है, व्हाट इज स्क्यूनेस, यानी कि कितना ज्यादा आपके पास जो ये वैलिड आपके पास ग्राफ है। लेट्स से देखिए यहां पर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, एंड इस ग्राफ के केस में पर्टिकुलरली, इस पर्टिकुलर ग्राफ के केस में स्क्यूनेस की अगर हम बात करें, तो मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो ग्राफ है, मेरे पास वो ग्राफ है, एक तो मेरे पास देखिए कर्व होता है ऐसे, जो मेरे पास सिमेट्रिक है अराउंड द कर्व, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज सेड टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड फर्दर अगर यहां पर देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जितने मेरे पास पॉइंट्स लेफ्ट साइड पर है, उतने ही पॉइंट्स मेरे पास राइट साइड पर है, राइट? लेकिन अगर मेरे पास यहां पर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड पर ज्यादा हो जाए एंड लेफ्ट साइड पर कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सॉरी लेफ्ट साइड पर ज्यादा हो जाए, राइट साइड पर कम हो जाए, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी पॉजिटिव स्क्यूनेस। एंड अगर मेरे पास जो पॉइंट्स हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर ज्यादा हो जाए, लेफ्ट साइड पर कम हो जाए, इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी द नेगेटिव स्क्यूनेस ओवर देयर, ठीक है? तो मेरे पास स्क्यूनेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो मेरे पास हो गया नॉर्मल ही हो गया, एक तो ठीक है, एक मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है एंड फर्दर एक मेरे पास नेगेटिव स्क्यूनेस होती है।
अगर मेरे पास जो बल्क ऑब्जर्वेशन है वो लेफ्ट साइड है मीन के, ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, सेंटर वाली जो मैंने डॉटेड वैल्यू बनाई है, ये मीन है, ये मीन वैल्यू। अगर मेरे पास बल्क जो ऑब्जर्वेशन है वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द पॉजिटिव स्क्यूनेस। ओके, एंड फॉर द मेरे पास जो अगर बल्क है वो राइट साइड पर है, तो उसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द नेगेटिव स्क्यूनेस ओवर देयर। एंड फॉर द हमारे पास ना डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, B1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तीन पैरामीटर्स है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, दोनों में यही पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो बीटा 1 इज इक्वल टू व्हाट, जो बीटा 1 है किसके इक्वल है, दैट इज μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। एंड फर्दर ये जो μ1 μ2 μ3 है, काइंडली प्लीज नोट इट डाउन, इसको प्लीज ध्यान में रखना है, इनके फॉर्मूलास को क्रैम करने के लिए नहीं लेकिन रिटेन करने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है। ये पर्टिकुलर क्या है, दिस इज द सेंट्रल मोमेंट, दिस इज द सेंट्रल मोमेंट। जैसे μ1 है, μ1 का सेंट्रल मोमेंट क्या है, μ1 का सेंट्रल मोमेंट क्या रहेगा, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार, f x माइनस एक्स बार एंड फर्दर डिवाइडेड बाय n, ये मेरे पास क्या है, दिस इज द सेंट्रल मूवमेंट, दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है। म्यू2 का रहेगा, म्यू2 विल बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स बार, सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, एंड डिवाइडेड बाय एन, दिस इज द सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट ओवर देयर। इसी तरह से थर्ड सेंट्रल मूवमेंट क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार एंड फर्दर क्यूब ऑफ द सेम डिवाइडेड बाय एन, दैट इज द थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंट्रल मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं कि सेंट्रल मूवमेंट का आंसर क्या होगा। एंड ये μ1 μ2 μ3 की वैल्यूज है, एंड फर्दर बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, बीटा 1 विल बी इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब ओवर देयर, ठीक है। यानी कि बीटा 1 की वैल्यू क्या है, लेट मी जस्ट यहां पर दोबारा से लिख देता हूं, दैट इज जो मेरे पास μ3 है उसका स्क्वायर एंड जो μ2 है उसका क्यूब, उसका क्यूब यहां पर, ठीक है। सो दैट दीज आर द वैल्यूज ओवर हियर, दीज आर द वैल्यूज ओवर देयर, दैट इज अ बीटा ओवर देयर। एंड ये बीटा 1 जो है यही मुझे यहां पर स्क्यूनेस के बारे में बताता है, यही मुझे स्क्यूनेस के बारे में बताता है। अगर मेरे पास बीटा 1 जो है वो 0 के इक्वल है, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बीटा 1 0 के इक्वल है, अगर बीटा 1 मेरा 0 से ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर बीटा 1 0 से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर मेरे पास बीटा 1 जो है, अगर मेरे पास बीटा 1 जो है वो यहां पर 0 से कम है, अगर बीटा 1 जो है वो 0 से कम है, तो वो मेरे पास क्या है, यहां पर नेगेटिव स्क्यूनेस है। नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब है कि बल्क पॉइंट आपके राइट तरफ है, बल्क पॉइंट आपकी राइट तरफ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी यहां पर पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे, मतलब कि जहां पर आपको वैल्यूज दी होंगी μ1 की μ2 की या फिर एक्स एक्स बार की वैल्यू दी होंगी, आपको ऑलरेडी एक टेबल दिया होगा, आपको स्क्यूनेस के बारे में कहा जाएगा कि क्या कर्व बनेगा, ऐसी वैल्यूज दी होंगी, या फिर आपको ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ पूछा जाएगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस कौन सी है, नेगेटिव स्क्यूनेस कौन सी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली यहां तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव तब होगा जब आपके बल्क पॉइंट आपके लेफ्ट तरफ है, एंड नेगेटिव कब होगा जब आपके बल्क पॉइंट जो है वो मीन से राइट तरफ है, ठीक है। एंड फॉर द बीटा अगर 0 है, बीटा 1 अगर 0 है तो आपका क्या है, बीटा 1 अगर 0 तो सिमेट्रिक है, अगर बीटा 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, बीटा 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, राइट। तो इस चीज का यहां पर ध्यान रखेंगे, ओके। फर्दर इसके बाद बात आती है क्यूटोसिस की, इसके बाद बात आती है क्यूटोसिस की। क्यूटोसिस भी पर्टिकुलरली देखिए, यहां पर हम लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल की बात करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग बेल एंड शॉर्ट बेल की बात करें, जैसे एक कर्व तो नॉर्मल कर्व हो गया मेरे पास, ये नॉर्मल कर्व हो गया, ओके। एक कर्व कुछ इस तरह का हो सकता है, एक कर्व कुछ इस तरह का हो सकता है, राइट। दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कीटोसिस ओवर देयर, यानी कि डिस्पर्जन जो होता है वो किसी केस में कम भी हो सकता है, वो किसी केस में ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि बेल शेप जो है वो एक केस में नॉर्मल है एंड एक केस में ऊपर ज्यादा है, एक केस में ज्यादा नीचे को है, ठीक है। जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है जिसकी पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती जुलती है, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैं एन मार्क कर रहा हूं। जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी पीक अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती जुलती है, जिसकी पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती जुलती है, उसको मेसोक्यूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोक्यूरेटिक कहते हैं। एंड जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो पीक है वो पर्टिकुलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हायर है, ये हायर वाली एच से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ये हायर वाली, उसको हम लेपोक्रेटिक कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेपोक्रेटिक कहते हैं। एंड ये ज्यादा बड़ी भी होती है एंड उतनी ज्यादा फैक्टर भी होती है, ठीक है, विच मींस टेल्स आर फैक्टर ओवर देयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी लेप्टोक्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लेप्टोक्रेटिक कहते हैं, जहां पर नॉर्मल से ज्यादा हाई है, ठीक है। एंड जहां पर नॉर्मल से कम होती है, जहां से नॉर्मल से कम होती है, शॉर्टर रेंज की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी प्लेटोक्रेटिक, उसको हम प्लेटोक्रेटिक कहते हैं। यानी कि जो सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शार्पनेस जितनी है उसको मेसोक्रेटिक कहते हैं, जहां पर हायर है उसको लेप्टोक्रेटिक कहते हैं, एंड फॉर जहां पर कम है उसको प्लेटोक्रेटिक कहते हैं, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे।
यानी कि यहां पर मार्क कर लेते हैं, दिस इज एम मेसोक्रिटिक एंड दिस इज लेप्टोक्रिटिक, दिस इज एल, एंड फर्दर जो लास्ट वाली है दिस इज प्लेटोक्रिटिक। ओके, तो इसको प्लेटोक्रिटिक कहते हैं। तो इस चीज का यहां पर ध्यान रखिए। यहां पर जो पैरामीटर्स है वो बीटा 2 पैरामीटर है हमारे पास। कौन सा पैरामीटर है? बीटा 2 पैरामीटर। जैसे जब हमने स्क्यूनेस के बारे में बात करी तो हमने बीटा 1 के बारे में बात करी, एंड बीटा 1 वाज इक्वल टू व्हाट? बीटा 1 वाज इक्वल टू म्यू 3 का स्क्वायर था एंड म्यू 2 का क्यूब था, ठीक है, दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर अगर मैं थर्ड यहां पर सेंट्रल की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या थी? एफ एक्स माइनस एक्स बार क्यूब डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते थे। इसी तरह से यहां पर कीटोसिस के केस में मेरे पास बीटा 2 है, इसके केस में बीटा 2 है, एंड बीटा 2 इज इक्वल टू जो मेरे पास यहां पर फोर्थ सेंट्रल यहां पर मूवमेंट है, दैट इज म्यू 4 एंड डिवाइडेड बाय म्यू 2 स्क्वायर, ओवर हियर। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से जो कैलकुलेशंस है वो हम यहां पर कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर तो मेरे पास बीटा 2 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है तो वो म्यूजोक्रिटिक है। कौन सा है? म्यूजोक्रिटिक है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता है। जहां पर बीटा 2 पॉजिटिव है यानी कि बड़ा है, वहां पर पर्टिकुलरली शार्प है, और ज्यादा फैक्टर है, ठीक है, वहां पर वो क्या है? दैट इज लेप्टोक्रिटिक, एंड जहां पर बीटा 2 जो है वो 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, वहां पर वो प्लेटोक्रिटिक है, दैट इज प्लेटोक्रिटिक। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास ओवर हियर। आई होप कि आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है एंड आप आगे आने वाली सभी क्लासेस को गो थ्रू करना चाहते हैं एंड इनकी पीडीएफ मटेरियल को पाना चाहते हैं तो उसके केस में देखिए सबसे पहले तो आपको एनरोल कर लेना है। दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.